دیکھ رہے ہو دنیا کے سب تک ناقابل بھروسہ ہے۔ مختار، میں عبداللہ عمر کا بیٹا، جو دنیا عرب کا خلیفہ تھا، جس کا نام سنتے ہی دشمنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج ایک لادین اور ہوس باز نوجوان کا دامن تھام رہا ہوں۔ شیخ، آپ کی شخصیت نہ تو ہلکی تھی نہ ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ آج یہ ارادہ کیجیے، ہم ابن زبیر کو ہٹا سکتے ہیں۔ نہیں مختار، نہیں۔ جو بے حرمتی ان حضرات نے خلفائے راشدین کے لباس کے ساتھ کی ہے، اس کے بعد یہ خلافت میری نظروں میں اور حقیر ہو گئی ہے۔ جو بار ایک دن عمر کے کاندھوں پر تھا، آج وہ بار ایک بے غیرت اور خبیث نوجوان کے ہاتھ کا کھلونا ہے۔ خدا اس خلافت کے بانیوں کو نہ بخشے کہ دین خدا کی جنہوں نے بے عزتی کی ہے۔ خدا کے دین کی آبرو دوبارہ برقرار کی جا سکتی ہے، آخر صبر کب تک شیخ؟ آپ نے بیعت نہ کر کے پہلا قدم اٹھا دیا ہے، بس دوسرا اور تیسرا قدم بھی اٹھا لیں تو کام تمام ہو جائے گا۔ لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں شیخ، یہاں تک کہ یزید بھی آپ کی قدرت سے ڈرتا ہے۔ وہ آپ کی چھپی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہے، اس کا ثبوت میری آزادی۔ آپ نے صرف ایک خط سے یزید کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھنڈے ہو جاؤ مختار، میں اور صفیہ سالوں سے حکومت اور قدرت کی لالچ کو بھول چکے ہیں۔ میں اپنے گھر کا بادشاہ ہوں مختار۔ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے، اس کی حکومت کی وسعت اہم نہیں ہوتی۔ فی الحال عبداللہ اپنی جان گنوانا نہیں چاہتا۔ ذرا گنو کتنے خلیفہ ایک لباس خلافت کی خاطر مارے گئے؟ عمر، عثمان، علی۔ صفیہ، تم نے حسین کو نہیں گنا؟ حسین اور یزید کا جھگڑا بھی اسی لباس کے اوپر تھا۔ میں تو مختار پر حیران ہوں، ابھی خون حسین ابن علی خشک نہیں ہوا ہے۔ حسین کے پاس دو طرح کی قدرت تھی، ایک طرف سے رسول خدا سے نسبت رکھتے تھے اور دوسری طرف ایک بے مثال خلیفہ تھے۔ ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آج کل عربوں کی غیرت ایک اد جلی لکڑی کی طرح ہے کہ اسے جتنا پھونکو اتنا ہی دھواں دے گی، شعلوں کے تو آثار ہی نہیں، اتنا دھواں دے گی کہ آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ اس کی ایک مثال خود جناب ہیں۔ شکر ہے کہ آپ کی چشم مبارک حال ہی میں ٹھیک ہوئی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو مختار؟ تم عبداللہ ابن عمر کو عبداللہ ابن زبیر کے مد مقابل کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ میں خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے خانہ کعبہ کی پناہ میں آیا ہوں، اور مجھے اس میں شک نہیں کہ خون حسین سفیانی شجرے کی جڑوں کا خاتمہ کر دے گا۔ جاؤ، یہ جال کسی اور پرندے کے لیے بچھاؤ۔ میں خود کو آپ کا مقروض سمجھتا ہوں، سو قرضہ چکانے آیا ہوں۔ قرض چکانا چاہتے ہو؟ بس اتنا کرو کہ اس کی زندگی کا سکون برباد مت کرو، اسے اس کی جانماز سے مت اٹھاؤ۔ ہمیں اتنی اجازت دے دو کہ خدا کے گھر کے پہلو میں ہم اپنی آخرت کا بہت خوب میرے ہم سفر، سنو، میں کل صبح سورج نکلتے ہی نکل جاؤں گا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اپنا راز صرف تمہیں بتا رہا ہوں عمرہ، میں مکے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو میں تمہاری ہم سفر بن جاؤں گی۔ تم تو اکیلے سفر نہیں کرنا چاہتے نا؟ تنہا نہیں ہوں، تم میرے دل میں ہو۔ کاش میں تمہارے ساتھ بھی چل سکتی۔ ایک بار شرط لگا لو تاکہ ضربی آنکھیں بند کر کے غیب کی باتیں کرے۔ مرد میدان ہو تو شرط لگاؤ۔ اپنی منزل کا نہ بتائے تو کیا؟ شرط ختم۔ منظور ہے، مگر اپنی آنکھیں اچھی طرح بند کرو گے۔ ٹھیک ہے، میں پلٹ جاتا ہوں تاکہ تم مطمئن رہو۔ اس نے اپنا جوتا پہنا، آگے گیا،
اب اس نے بانو عمرہ سے کچھ کہا. بانو عمرہ سے جدا ہوا, دلدل کو ایک نظر دیکھا, پھر ایک نظر ہمیں دیکھا, ہماری طرف آیا. اب کہے گا ضربی اپنا اور دلدل کا خیال رکھنا. ضربی, جی ابو اسحاق. اپنا اور دلدل کا خیال رکھنا. بے فکر رہو بھائی, اپنے آپ سے زیادہ خیال رکھوں گا. دلدل کی طرف گیا, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, اپنا چہرہ دلدل کے ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. مزدور بھی چاہیے کیا؟ مزدور؟ ارے تختہ نہیں چاہیے؟ ثقفی بہادر دلاور پر درود. کیسے ہو مختار؟ یہ کیسی حکمت ہے کہ مکہ کے زیادہ تر سیاسی افراد کے نام عبداللہ ہیں؟ جب گھر بیت اللہ ہے تو خادمین کو ضرور عبداللہ ہونا چاہیے. اہلاً و سہلاً ابو اسحاق. اہلاً و سہلاً. اس گھر میں منہ پر نقاب رکھنا کراہیت رکھتا ہے. یہ گھر امن کی جگہ ہے, کس سے ڈر رہے ہو؟ میرا ڈر ان عبد الشیطان حضرات سے ہے جو اپنے آپ کو اس گھر کا خادم کہتے ہیں. یہ عقیدے تمہارے جہاد کا اجر ضائع کر دیں گے ابو اسحاق. تم مشر اور منی کی سرزمین میں ہو, عرفات میں ہو, صفا و مروہ کی سائی میں ہو. مکے میں حاجی کو اپنے پورے وجود کا دھیان رکھنا چاہیے, خاص طور پر زبان کا. اپنے رمی جمرہ کو بغض و کینے میں تباہ مت کرنا. آج میرا رمی جمرہ رمی یزید ہے دوست. مرحبا. تو پھر اس گھر کے خادموں کی کیوں توہین کر رہے ہو جن کا ارادہ رمی یزید ہے؟ زبیر کے بیٹے کو عبد الشیطان کہنا ناانصافی ہے. وہ ہمارے صالحین میں سے ہے. ہاں. بن متی, میرے چہرے پر نقاب تھا تو تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ مختار جیسا نامور سیاسی آدمی, وہ بھی مکے جیسے شہر میں جہاں یزید کے مخالفین کو پناہ دی ہوئی ہے. کچھ بھی کر لے وہ اپنے رقیبوں کی نظروں سے بچ نہیں سکتا. عبداللہ ابن زبیر تمہارا منتظر ہے مختار. اگر تم اور عبداللہ ابن زبیر دونوں مل جاؤ تو یزید کا قلعہ کما کر سکتے ہو. جناب مختار, ان قریب آپ اس کی زیارت کا شرف پائیں گے جو ہے عابد عبادت گزار, دشمن کفار, مجاور خانہ یار, خادم امت ہوشیار, خصم یزید نابگار, نواسہ یار غار, فرزند صحابی کبار, خلیفہ نو مکان نو افکار, خلیفۃ اللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام, جو اپنی خالہ ام المومنین سے متصل ہیں اہل بیت خاتم الانبیاء حضرت مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ. ہاں بالکل, ہم بھی اس لمبے چوڑے قصیدے کی زیارت کے مشتاق ہیں.
चल हटाओ, हट जाओ, हट जाओ। अहलन व सहलन मुख्तार। किस बात पर हंस रहे मुख्तार? मस्खराबाजी है। क्या फरमाया? ये मुज़हका खेज है, मस्खराबाजी है। कौन सी चीज मस्खराबाजी है? यही चाल चलन जो आपने शुरू कर दिया है। ये यमन है या मक्का? आप अब्दुल्ला जुबैर हैं या सुलेमान नबी? ये तख्त सुलेमान पर एक ताना है। कहीं नबूवत का दावा तो नहीं करना चाहते आप? नहीं 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 मुख्तार, नहीं। नबूवत अटकने वाला लुकमा है, मुझे मार देगी। हमारा मिजाज शबीह नबूवत पर ज्यादा साजगार है। अंबिया की नालैन में पांव डालना महज हिमाकत है। रसूलुल्लाह, खलीफतुल्लाह, हम इसी खलीफतुल्लाह ही पर काने हैं। खलीफतुल्लाह होने के लिए इतने सारे मौजज़ात की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं मुख्तार, नहीं। हमने तो तुम्हारे औसाफ में सुन रखा था कि तुम सियासतदान हो, तो फिर कहाँ गया? एक आम अनपढ़ इंसान की तरह बात कर रहे हो। अगर हमारे मौजज़ात की हिकमत जानते तो इन्हें मस्खरा ना कहते। जहां तक मैं जानता हूं हमारा दीन एतदाल और सादगी का दीन है। इसकी बेहतरीन मिसाल खाना काबा। तुमने अली और उसके चाहने वालों से ज्यादा सादा लो देखा है? न देखा है और न ही देख सकता है। मैं उन तमाम इख्तलाफात के साथ जो कि मैं अली के मसलक से रखता हूँ, इस बात का इकरार करता हूँ कि सादगी इराक में किसी जगह अबू तुराब के साथ सिपुर्द खाक हो गई। अली के सर को लोगों की सिर्फ जाहिरी आंखों ने पारा पारा किया है, ना कि शमशीर इब्न मुलजिम मुरादी ने। हुसैन को भी उन्हीं लोगों ने कत्ल किया जिनकी अक्ल उनकी आंखों पर थी। अब तुम और तुम जैसे लोग दयानत, अदालत और सादगी की बातें करते रहो। बनु उमैया सालों से अपने जलाल और जबरूत से मुसलमानों के सर पर जबरदस्ती हुकूमत कर रहे हैं। सब्ज महल की शान और शौकत, मस्जिद आजम सबसे बड़ी मिसाल है। ऐसी मस्जिद बनाइए कि हैरत के मारे इंसान का मुंह खुला रह जाए। तो फिर क्यों ना हम मक्के को शाम के मुकाबले में ना उठाएं? हाँ? तो फिर आपको भी दिन की फिक्र नहीं है। तो फिर आले जुबैर और आले उमैया में क्या फर्क है जब एक ही रविश पर हुकूमत करनी है दोनों को? इस तरह तो आप और यजीद एक जैसी सोच रखते हैं, फिर उससे मुखालफत क्यों रखते हैं? मुझे 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 सिर्फ यजीद से सिर्फ शरीयत पर इख्तलाफ है मुसलमान। मैं उसकी सियासत पर कोई एतराज नहीं कर रहा, उसकी दियानत पर मुझे एतराज है। यजीद शराब पीता है, यजीद जुआ खेलता है, यजीद लहोलाब करता है, यजीद कुत्तों से खेलता है, बंदरों से खेलता है, यजीद नमाज को हल्का समझता है। ऐसे अमीरुल मोमिनीन का खून मुबाह है। अमीरुल मोमिनीन को झूठ और रियाकारी से मुबर्रा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मगर बहस बराए बहस मत करो मुख्तार। कितनी शरीयत जानते हो? उतनी जानता हूं कि अपने काम में मुकम्मल रसूख रख सकूं। बहुत खूब, शाबाश। तो फिर ये भी जानते होगे कि वो मसलियत आमेज झूठ और रियाकारी जो दीन की हिफाजत के लिए हो वो शरअन जायज है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुख्तार, ये शरीयत की बहस हमें हमारे मुश्तरक हदफ से रोक रही है। तुम यजीद के मुखालिफ हो, मैं भी हूं। तुम यजीद के खून के प्यासे हो, मैं भी हूं।
तुम हुसैन के खून का इंतकाम लेना चाहते हो, मैं भी लेना चाहता हूं। बैत करके बहस खत्म करो। एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? इराक अरब। तो फिर मुख्तार का मसला हमें हुसैन नहीं है। हुसैन का इंतकाम एक बहाना है इराक की हुकूमत तक पहुंचने के लिए। तुम्हारी होशियारी वाकई लाजवाब है मुख्तार। हुसैन तो यजीद के लिए कोई खतरा नहीं था। यजीद ने हुसैन को मार के हिमाकत की है। बेशक वो इस बात से गाफिल था कि हुसैन से कहीं ज्यादा हुसैन का खून खतरनाक है। तुमने अच्छा डोरा डाला है मुख्तार, बस इतना ख्याल रखना कि हमसे ना टकराना। तुम तो जानते ही हो कि दो बादशाह एक सल्तनत में और दो तलवार एक नियाम में नहीं रह सकती। मैं अपनी पूरी कुदरत के साथ यजीद के मुकाबले पर खड़ा हुआ हूं। चाहे मुख्तार जैसे लोग मेरी मदद करें चाहे ना करें। जाओ। और हाँ मुख्तार, खबरदार, ऐसा ना हो कि हिजाज के लोगों के दरमियान तफर्रुका पैदा करो। हिजाजी लोग मेरी बैत में हैं। अगर लोगों को अपनी बैत की दावत दोगे तो मेरे हरीफ कहलाओगे। मेरी बात समझ रहे हो मुख्तार? मैं यजीद नहीं हूं कि मुख्तार को कैद करने की गलती करूं और एक खलीफा की औलाद के कहने पर उसे रिहा कर दूं। तुमने जरा सी गलती की तो फौरन मार दिए जाओगे। तखलिया। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं भाइयों? इराक है अरब। इराक में कहाँ? बसरा। ये तुम हो अबू इसहाक? हाँ। और आप? मैं हानी इब्न जुब्बा वादाई हूँ, कूफे का रहने वाला। मरहबा बहादुर, वाकईन तुम ही इब्न मरजाना की कैद से भाग सकते थे। मुझे यकीन नहीं आता था। कूफा की क्या खबर है? एक नागहानी आफत ने अपने मरजाना की घुटने टेक दी है। सुना है कि एक लाइलाज जख्म हो गया है उसके पैर में, जो उसकी हड्डियों तक सरायत कर गया है और तबीबों का इरादा है कि उसका पैर काट दे। इब्न मरजाना की नागहानी आफत मैं हूँ। एक जहमत दूंगा तुम्हें हानी। सर आंखों पे। कूफा कब जा रहे हैं? यमन के काफिले के इंतजार में हूँ। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द कूफे की तरफ निकलूंगा। मेरे घर वालों से कहना मैं खाने काबा के जवाब में हूँ। देर कर दी तुमने कासिद। 2-3 दिन ताखिर कैसे हो गई? हजरत खलीफा सोगवार थे, मुझसे मिलना नहीं चाहते थे।
भला दूर रहे, किस बात से सोगवार थे? एक गुमशुदा हमदम की याद में सोगवार थे। मरने वाला कौन था? अबू कैस। अबू कैस उनका बंदर? जी अमीर, अबू कैस बंदर नहीं था। अबू कैस अमीरुल मोमिनीन की तन्हाई का साथी था। अबू कैस खलीफा का करीब तरीन दोस्त था। बहुत गम अंगेज खबर है। ऐसा क्या हुआ कि मरहूम अबू कैस खुदा की रहमतों से जा मिले? जैसा कि आप जानते हैं, अबू कैस एक काबिल शहसवार था। एक घोड़सवारी के मुकाबले में घोड़े से गिर गया। करीने से ये बात जाहिर है कि किसी खयानतकार ने घोड़े के तस्मे को ढीला कर दिया था ताकि अबू कैस को मार दे। मशकूक मिल गया? उसने इक़रार जुर्म किया? चंद एक अफराद को यूं ही गिरफ्तार कर लिया है। जब तक मैं शाम में था उन्होंने इकरार नहीं किया था। अबू कैस को घुड़सवारी में बड़ी महारत थी। मुझे बाईद लगता है कि वो अपने आप गिरा हो। यकीनन घोड़े के तस्मे को शायद ठीक ना बांधा गया होगा, या मुमकिन है ढीला बांधा गया है ताकि मरहूम अबू कैस नीचे तशरीफ ले आए। चुप करो। मशकूक लोगों के नाखून खींचे जाएं तो जरूर मुंह खोलेंगे। बहरहाल खुदाबंद आलम इस गम के दाग पर खलीफतुल मुस्लिमीन और उनके चाहने वालों को सब्र इनायत अता फरमाए। बिन हुरैस। जी अमीर। खलीफा के दागदार कासिद की यूं पजीराई करो कि वो इस अजीम मुसीबत की तकलीफ और सफर की थकावट को भूल जाए। और कासिद, जाओ आज और कल खूब आराम करो। परसों आ जाना और खलीफा के लिए मेरा जवाब ले जाना। जी अमीर। चुप करो, जरा मुंह बंद करो ताकि मैं देखूं कि क्या लिख भेजा है उसने। इब्ने जुबैर ने हिजाज में हंगामा आराई के लिए कदम उठाया है और मुसलमानों को अपनी बैत की दावत दे रहा है। हम आपसे ज्यादा लायक किसी को नहीं समझते जो आले जुबैर के फितने को खत्म कर सके। बिना सोचे हिजाज की तरफ लश्कर कशी करो। तुम्हें पूरा इख्तियार है कि अहले हिजाज की ईंट से ईंट बजा दो और जुबैर के बेटे का सर हमारे लिए भिजवा दो। वल्लज़ीना क़ज़ा अल्लाहु बिमनिही व करमिही। अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न मुआविया इब्न अबू सुफियान। इजाजत है अमीर। क्या हुआ? फिर खलीफा का कोई पैगाम आया नहीं कि तुम बू सूंघते हुए चले आए? आखिर हमसे क्या चाहते हो उमर? खुदा और रसूल की कसम, अगर मेरी मोहर की कोई अहमियत होती तो रे की अमीरी का हुक्म तुम्हारे लिए मोहर कर देता और किसी हड्डी के टुकड़े की तरह तुम्हारे आगे फेंक देता। ये लो, जानना चाहते हो कि खलीफा ने क्या लिखा है? पढ़ लो। रे की हुकूमत का हुक्म नहीं है, मगर तुम्हें रे से एक कदम नजदीक जरूर कर सकता है। मैं मक्का पर लश्कर कशी नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो तो बिस्मिल्लाह, तुम खुद खलीफा से बात कर लो। मेरी मानो तो इस दफा भरपूर सौदा करना उमर। खलीफा के वादे यानी बकवास। हुकूमत रे हवा हवा, उमर साद गधा। मैं खाने काबा पे हमला करके अपने बाप की कब्र पे थूकूं? क्या बात है, जुबैर के बेटे में मुसब नजर नहीं आ रहा? मुंजर, जाफर, तो फिर मुसब कहाँ है? मुसब को मुख्तार से मिलना पसंद नहीं था, उसने माफी मांगी है ना आने पर। हक बनता है, हक बनता है। उस शख्स का गुरूर
बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जब उसने बैत नहीं की तो उसे सांस लेने का मौका क्यों दिया? मैं और मुंजर उसे मारने के लिए तैयार थे। नहीं नहीं जाफर, मुख्तार को मारना फिलहाल हमारी नई हुकूमत के हक में ठीक नहीं है। वो इराक़ अरब और हिजाज ताइफ के बानफूस शियों में से है। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक उसने कोई कदम नहीं उठाया उससे हाथ मिलाते रहेंगे। हाँ हाँ, फकत इतना याद रखना कि मुख्तार बिला वजह हिजाज नहीं आया है, कोई दलील तो है। और जान लो कि मुख्तार आले जुबैर के लिए यजीद से भी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर हर लम्हे उसे नजरों में रखो। हाँ, उसके गिर्द एक नादीदा जाल बिछा दो। उसकी तमाम आमद और रफ्त को नजर में रखना, तमाम तर। हमें पता चलना चाहिए कि हिजाज में कौन कौन उसका हामी है। खूब, बहुत खूब। ताज़ा खबरें क्या है? यजीद ने इब्ने मरजाना को हिजाज की तरफ लश्कर कशी का हुक्म दे दिया है। इब्ने मरजाना क्या बेतुकी सोच है। अहमक ये समझता है कि करबला को फतह करने वाला खाने काबा को भी फतह कर सकता है। आ जाए इब्ने मरजाना, जरा हिजाज की तरफ आ जाए ताकि उसे दिखाएं कि आले जुबैर और आले अली में क्या फर्क है। सकफी लोग ज्यादातर ताइफ में रहते थे। मुख्तार जब आले जुबैर से मुआफिकत न कर सका तो अपनी वालिदा के पास ताइफ गया, मगर आले जुबैर का ना दिखने वाला जाल किसी मकड़ी के जाल की मानिंद मुख्तार के इर्द गिर्द फैला रहा और उसे हर तरह के काम से रोके रखा। तारीख की गवाही के मुताबिक यहाँ तक कि मुख्तार की अपने दोस्तों से रातों की मुलाकातें भी आले जुबैर की नजरों के हिसार में रही। कहाँ गुम हो मुख्तार? ताइफ में दुनिया की सबसे प्यारी माँ दुम्मा उल आजम के पास सालों दूर रहने के बाद कुछ अर्सा अपनी माँ की आगोश में जिंदगी बसर करने का मौका मिला। ताइफ में आपकी मौजूदगी ने मेरे रंज सफर को कम किया है। खुदा आपके साए को आपके बेचैन बेटे के सर से न उठाए। तुम भी बिल्कुल अपने मरहूम बाप की तरह हो। तुम्हारी जान तलवार और घोड़े से जुड़ी हुई है।
वो जब भी किसी जंग के लिए रवाना होते थे तो वसीयत करते थे कि दुम्मा, मैंने अपना माल तुम्हें बख्शा, मगर अपनी जान और आबरू अपने बेटे मुख्तार को बख्शी। मेरा घोड़ा और तलवार संभाल कर रखना, यहाँ तक कि मुख्तार बालिग हो जाए। उसे कहना कि उसके बाप के पास इससे ज्यादा गिरा कदर मिरास नहीं थी। वो मुझसे ज्यादा अपनी तलवार के आशिक थे। मैंने भी उसी गिरा कदर मीरास के सहारे बहुत इज्जत कमाई है, मगर फिलहाल जुबैर के मनहूस बेटे ने अपनी चालाकियों से मेरी तलवार को रोका हुआ है। माँ, मैं हजारों उम्मीदों और आरजुओं के साए में हिजाज का राही इसलिए नहीं हुआ हूं कि जुबैरियों के नामरई हिसार में रहूं। तुम रास्तों से अनजान और ना आशना नहीं हो मेरे बेटे। तुम इस नामरे हिसार को जरूर तोड़ोगे। जुबैर के बेटे ने चालाकी से तुम्हारे हाथ पांव काट दिए हैं। बहुत खूब, तुम भी रिंदी करके दिखाओ। मगर कैसे माँ? वो खूने हुसैन को अपनी हुकूमत की कीमत बनाए बैठा है। हिजाज के लोग उसके बड़े झूठ को सच मानते हैं। उसे कैसे रुस्वा करूं? तुम्हें कुशादा रोई से पेश आना होगा। तुमने अच्छा नहीं किया जुबैरपुर से बैत के लिए हुकूमत इराक की शर्त रख के। खूने हुसैन का इंतकाम इसलिए ले रहे हो कि इराक के हाकिम बन जाओ। खुदा गवाह है कि मेरी नीयत ये नहीं है। तो फिर क्यों इसे बैत की शर्त बना दिया? माँ, मुझे यकीन है कि अगर आले जुबैर को इक़्तिदार मिल गया तो ये लोग खूने हुसैन की दास्तान को भुला देंगे और फर्जंद रसूल के कातिलों को बख्श देंगे। मैंने बैत की शर्त हुकूमत इराक इसलिए रखी है ताकि कातिलान हुसैन का पीछा कर सकूं। थोड़ी जल्दी कर दी तुमने बेटा। माँ, आपका मकसद क्या था जो आपने कहा रिंदी करो? अभी तक मुझे नहीं पता बेटा, हमें मजीद सोचना पड़ेगा। बस इतना जानती हूँ कि इब्ने जुबैर से बैत करने की शर्त इराक की हुकूमत नहीं होनी चाहिए थी, और उसे वापस ले लेना उससे भी ज्यादा बड़ी गलती होगी। तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए था। तुम उल्टे कदमों पीछे हटोगे तो इब्ने जुबैर समझ जाएगा कि मुख्तार की इस खामोशी में कोई चाल है। हम लोगों को अगले वाकयात को देखकर फैसला करना होगा। लश्कर यजीद ने मुस्लिम इब्ने उक़बा की सिपा सालारी मदीनतुल नबी पर हमला किया। तारीख की गवाही के मुताबिक असहाब रसूल और यहां तक कि मज़ार रसूल और कुरान भी उनके कदमों की जद में आ गए। मुस्लिम इब्ने उक़बा इस हमले के बाद बीमार होकर मर गया और लश्कर यजीद उसके बाद हुसैन बिन नुमैर सकूनी की सिपा सालारी में मक्के की तरफ चल पड़ा। ऐ बैतुल्लाह के ज़ायरीन, ऐ दिलों के किबले के ज़ायरीन, ऐ काफिला इश्क के उम्रा करने वालों, उस गासिब खलीफा को तो देखो जो गुस्से के घोड़ों पर सवार होकर अब खुदा से लड़ने आया है। यजीद बदकार ने आज मज़ार रसूल अल्लाह की हुर्मत भी पामाल कर दी ताकि ये साबित कर सके कि वो खाना काबा पर हमला करने में कोई कबाहत नहीं रखता। शाम के लश्कर ने मदीनतुल नबी पर आयते वही के नजूल के शहर पर, उस शहर पर जिसमें रसूल खातिम की आरामगाह है, हमला करके मुसलमानों के सर काट दिए और उनके माल और नामूस को गारत करके ले गए। ये खून का प्यासा लश्कर मदीनतुल नबी को वीरान करने के बाद अब राह मक्का पर चल पड़ा है, जो बाखुदा कसम
अबरहा की फौज की तरह का अंजाम पाएगा। खुदा काबे का मुहाफिज है, इसमें शक नहीं कि खुदा अपने घर को शैतानों के शर से महफूज रखेगा। ए हाजियों, काबे का तवाफ कीजिए और काबे के खुदा को पुकारिए, क्योंकि आज इम्तिहान का दिन है। आज रमिए जमरा, रमिए यजीद और रमिए सिपाही यजीद है जो खुदा को भी नहीं जानती। जो मुसलमान कुव्वते जहाद रखता है वो तलवार उठाए, और जो कुव्वत नहीं रखता वो अपने माल से किसी मुसलमान को मुसल्लह करे। और जान लीजिए कि खुदा काबे का मुहाफिज और मोमिनीन का हामी है। वाह वाह वाह, तुम्हारा बागीचा आबाद रहे। क्या गजब के मजेदार अंगूर हैं। फल का मजा तो बागबान के दम से होता है। न जाने किस दिल से तुमने ताइफ में बेलचा चलाया है। ताइफ की जमीन जरखेज है बिन मुती। उस बूढ़ी उम्मे सारा के बाग को भी देखोगे तो समझ जाओगे कि मुख्तार का जमीन में बेलचा चलाना इन मोटे ताजे मेवों से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मैंने तो पूरे ताइफ में मुख्तार के बाग जितने मोटे ताजे अंगूर ना देखे हैं और ना खाए हैं। वाह भाई वाह वाह, अंगूर नहीं मोती हैं। इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है बिन मुती। मेरे लिए तो इस ताइफ के बागीचे का हर हर अंगूर का दाना जहर के बराबर है। नहीं, ना देते तो अच्छा होता। मेरा तो पेट भर गया। खुदा का शुक्र है कि अब तक कुछ गैरत बाकी है तुम्हारे पास। बेशक तुम्हारे फैसले हैरत अंगेज हैं। खाओ खाओ बिन मुती, तुम्हारे लिए खुशगवार है। अजब खूनी दिल है बागबान का। मैं हिजाज इसलिए नहीं आया था कि ताइफ में कैद हो जाऊं और अंगूर के बागीचे आबाद करके मीठे अंगूर उगाऊं। तुम मेरी हालत से वाकिफ हो दोस्त, तो फिर बाग के अंगूरों की तारीफ करके इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारा अपना कसूर है मेरे भाई। जो पत्थर तुमने अगले के सामने फेंका था, तुम्हें ये तवक्को थी कि वो तुम्हें पजीराई करके हलवा खिलाएगा। खुदा उसके माँ बाप को बख्शे कि उसने तुम्हारी गर्दन नहीं उड़ाई। तुम बेफिक्र रहो, अगर वो मुझे मार सकता तो कभी न छोड़ता। माफ कीजिए अबू इसहाक, वो तुम्हें क्यों नहीं मार सकता था? तुम उसके साथी हो, उसकी दलील तुम ज्यादा समझ सकते हो। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि खुदा का खौफ किया और तुम्हें छोड़ दिया। खुदा? नहीं, कौन सा खुदा? वो खुदा जो कादिर मताल है, या वो खुदा जिस पर खलीफा बैठा हुआ है? मैं सालों से तुम्हारा दोस्त हूँ मुख्तार, मगर कभी भी इतना तंग नजर नहीं पाया था तुम्हें। ये जिंदान का तोहफा है जो गलत ही सोचते रहते हो। ये सियासत का तोहफा है दोस्त। मैंने सियासत में ये सीखा है कि साहिबान इक़्तिदार अपनी कुर्सी के अलावा किसी और खुदा को जानते ही नहीं। ये सियासत हमें क्यों ऐसा सबक नहीं देती? आखिरकार हम भी एक तवील मुद्दत से सियासत में जकड़े हुए हैं। मुख्तार, तुम इब्ने जुबैर के बारे में गलत फहमी और नाइंसाफी से काम ले रहे हो। उसे यजीद से मिलाना महज नाइंसाफी है। खुदा की कसम, उसका कुत्ता भी सैकड़ों यजीदों से बेहतर है। तुम और इब्ने जुबैर एक ही दुश्मन रखते हो। हैफ नहीं है कि तुम लोगों के ताल्लुकात खराब रहें। तुम दोनों का इत्तेहाद यजीद का सर नीचा कर सकता है। तुम अपने दोस्त से मिलने नहीं आए हो, दलाली के लिए आए हो। सुनो मेरे दोस्त, तुम एक अच्छे सियासतदान हो। तुम्हारे सर पर टोपी नहीं रखी जा सकती, और तुम्हें यह हुक्म है कि मुख्तार और इब्ने जुबैर की दोस्ती करवाओ तो करवाओ। तुम्हारी दलील भी काने करने वाली थी, मगर मैं फकत एक शर्त पर इब्ने जुबैर की बैत करूंगा। हुकूमत इराक़ अरब मेरे हिस्से में आनी चाहिए। मुझे यकीन आ गया कि साहिबान इक़्तिदार का खुदा उनकी कुर्सी होती है।
मुझे चलने की इजाजत देते हो? कहाँ इतनी जल्दी? यकीनन तुम जानते होगे कि यजीद ने शाम के लश्कर को हिजाज की तरफ रवाना किया है। इससे बढ़कर और कौन सी फजीलत हो सकती है कि खुदा और दीन और काबे के दुश्मन के मुकाबले पर खड़े होकर जहाद करूं। तुम क्या करोगे? मैं सोच रहा हूं कि इस बागीचे में एक बड़ी सी इमारत खड़ी करूं और एक फव्वारा बहुत खूबसूरत सा, एक पिंजरा उस कोने में और एक इस्तबल उस तरफ। अपने अहलो अयाल को ताइफ ले आऊंगा और अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। हमारे भाई का इरादा यह है कि वो परिंदों को चारा डाले। नया ओहदा मुबारक है मुख्तार। वैसे कुछ बुरा नहीं कि चंद बूढ़ी औरतों को भी इकट्ठा करो और ताइफ के हरम सरा के खलीफा बन जाओ। तुमने तो इंतहा कर दी है। मुझे पता है तुम्हारा दिल तुम्हारी तलवार की आवाज सुनने के लिए बेचैन है। जो कुछ तुम चाहते हो इब्ने जुबैर बहुत जल्द पूरा कर सकता है। चलो मक्का चलो और बैत करके यजीद से लड़ो, ठीक है? हुकूमत इराक की शर्त तुम्हारी सारी जिंदगी का अजर जाया कर देगी। वाह भाई, अबू इसाक के दीदार से हमारी आंखें रोशन हुई। क्या बात है, ताइफ के बगीचे में दिल नहीं लगता तुम्हारा? उम्रे के लिए आए हो या खुमरे के लिए? अजीब जानवर हो तुम इब्ने सहल। ये खुमरा से क्या मुराद है? मैंने सुना है कि इस साल तुम्हारे ताइफ की फसलें बहुत मुनाफा बख्श रही, तो मैं समझा कि सिरका बनाने के लिए खुमरा यानी मटका खरीदने मक्का आए हो। आजकल सिरके की तिजारत बहुत पुररौनक है, खास तौर पर वो सिरका जो मुख्तार ने बनाया। तुम्हारी बकवास सुनने का हौसला नहीं है मेरे पास इब्ने सहल। अगर कासिद हो तो पैगाम सुनाओ, वरना नमाज में खलल पैदा मत करो। कौन सा कासिद, कौन सा पैगाम? क्या सक़फ़ी शेर को तवाफ़ काबा में मसरूफ देखकर उसका खैर मकदम नहीं करना चाहिए? एक बात तो बताओ मुख्तार, दीन और ईमान बरकरार है? मेरे कान खुले हैं, मेरे दीन और ईमान का नहीं मालूम और खुदा अरहमर राहिमीन है। इस बात के मुनकिर पर लानत। खुदावंद आलम रहमान और रहीम जरूर है, अगर बंदा ना अहल ना हो। अगर खुदावंद ने यजीद और यजीदियों पर रहम कर लिया तो कम से कम मैं तो काफिर हो जाऊंगा और उसकी इताअत की जंजीर तोड़ दूंगा। तुमने सुना मदीनतुन नबी के साथ क्या सलूक किया गया? शहर रिसालत की इस कदर बेहुरमती की गई है कि सालों साल तक मुसलमानों का सर शर्म से झुका रहेगा। कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जिसका दिल ये खबर सुनकर भी न रोए और अपने दीन और मुसलमानों की इज्जत के गम से बेफिक्र होकर खेती बाड़ी और तिजारत में मसरूफ रहे? है कि तुम मस्जिदुल हराम में खड़े हो, वरना इस बदतमीजी के जुर्म में तुम्हारे दांत तोड़ देता। ये जुमले मुझे सुना रहे हो? जाओ ये बातें अपने उस नए बादशाह और मुहाफिज़े दीन से कहो जिसे मुसलमानों की नामूस की हिफाजत करनी चाहिए थी। अगर इक़्तिदार और रियासत के नशे ने इब्ने जुबैर को अंधा न किया होता तो आज मुसलमानों की ये हालत न होती। इब्ने जुबैर क्या कर सकता है जब मुसलमानों के लड़ाकू बहादुरों फौजियों शेरों ने अपने कोने पकड़ लिए हैं और उसकी मदद नहीं करते?
مثال کے طور پر تم مختار آخر کیوں تلوار کے قبضے پر ہاتھ نہیں رکھتے؟ کیوں مجھ سے ہاتھ نہیں ملاتے؟ تم بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہو کہ خانہ کعبہ کو تمہاری آنکھوں کے سامنے جلا دیا جائے؟ تم خود سب سے بہتر جانتے ہو ابلیس، میں پچھلے سال بیعت کرنے گیا تھا، تمہارے آقا نے میری بیعت قبول نہیں کی۔ اتنی ساری شرائط کے ساتھ بیعت کو تو خدا بھی قبول نہیں کرتا، بیعت اور حکومت عراق کے بدلے؟ ارے مسلمان، تمہارے دین کی جڑوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور تم اپنی ریاست کی فکر میں پڑے ہو۔ ہاں، میں اپنی ریاست کی فکر میں ہوں، یا حکومت عراق یا بیعت کا قصہ ختم۔ اب تم اور تم جیسے لوگ جو چاہو باتیں بناؤ، میری بات ایک ہے اور خدا بھی ایک ہے۔ خدا کی پناہ ہے تمہارے سرپھرے پن اور اکڑ پن سے مختار۔ میں نے سنا تو تھا کہ سرپھرا اور پاگل، مگر یقین نہیں تھا۔ ہاں، سرپھرا، انتہائی پاگل اور ضدی۔ اگر کچھ اور ہوتا تو اب تک بنی امیہ مجھے ختم کر چکے ہوتے۔ اب مزاحمت مت کرنا تاکہ میں نماز پڑھ سکوں۔ میری سازشیں قبول ہے؟ کیا کروانے کے لیے؟ تمہارے اور ابن زبیر کے درمیان صلح کے لیے۔ اگر وہ تمہاری شرط منظور کر لے تو کیا میدان میں آؤ گے؟ ابن سہل، میری شرط واضح ہے اور میری خواہش بھی معین ہے۔ مجھے سالس نہیں چاہیے، ضامن چاہیے، ایک مہر شدہ لکھا ہوا حکم چاہیے۔ وسلام۔ قبول۔ آج رات کہاں ہوگے؟ اپنی بہن کے گھر۔ جلد ہی اطلاع دوں گا، شاید آج ہی رات تمہاری شرط لکھوا لوں۔ ظاہراً تقدیر کے خلاف کھڑے ہونا ایک نہایت دشوار کام ہے۔ کتنی بار ہم نے مختار کی نیت سے استخارہ کیا جو کہ ہمیشہ خیر ہی آیا۔ مشیت الہی نے یہی چاہا ہے، ہم ایک دوسرے کی تقدیر پر رحم کھائیں اور ایک ہی محور کے گرد گھومیں۔ مختار، یہ گھومنے والی کرسی ایسی ہے جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، جہاں بھی بیٹھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور برابر رہیں گے۔ بسم اللہ۔ بہتر رہے گا کہ اس سے پہلے کہ یہ دماغ چکرانے والی کرسی الٹی کا باعث بن جائے اور اس متطہر کرسی کو نجس کر دے، حکم دیجئے کہ یہ گھومتی ہوئی کرسی رک جائے۔ تمہارا عذر قابل قبول نہیں مختار۔ تم جب کعبے کے گرد گھومتے ہو تو کیا تمہارا دل پرآشوب ہوتا ہے؟ سر چکراتا ہے کیا؟ خدا کی لعنت ہو شیطان پر، کیوں بے تکے قیاس کر رہے ہو شیخ؟ میں ذاتی طور پر ہر چکرانے اور گھمانے والی چیز کے مخالف ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ تم جیت گئے مختار۔ میں کیا جیت گیا شیخ؟ میں ذاتی طور پر اپنے حریف کو گھما دینے کا عادی ہوں۔ کسی کو فلسفے سے، کسی کو شریعت آمیز باتوں سے، کسی کو ہیلا بازی سے اور کسی کو گول گھمانے سے۔ تم کسی بھی جال میں نہ پھنس سکے مختار۔
जो धोखे की तलवार से ना टूटे वो किसी भी तलवार से नहीं टूट सकता। हुकूमत इराक अरब यजीद अलैहिस्सलाम से जीत जाने की शर्त पे तुम्हारी होगी। हुकूमत इराक के अलावा भी 2 और शर्तें हैं मेरी। वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ये कि तमाम कामों में मुझसे मशवरा करेंगे, और दूसरी ये कि मुझे वो वाहिद आदमी होना चाहिए जो हर वक्त बगैर किसी तकल्लुफात के खलीफा के दीदार को आ सकूं। तुम्हारी पिछले साल वाली शर्त मान लेते तो हम फायदे में रहते। अगर ये कबूल न करो तो तीसरी बार इससे भी ज्यादा सख्त शराइत होंगी। खतरा हमारे सर पर मंडला रहा है मुख्तार। बेहतर है कि अब मजाक खत्म कर दें। इंसाल जी अमीर। जो कुछ लिखा है उसमें अबू इसहाक की 2 शर्तें भी इजाफा कर दो। बेहतर अमीर।